मैं राजनारायण यादव जी सेक्रेटरी समाजवादी पार्टी का। ये देखो जी, ये पुलिया इन्होंने अच्छा वाला पुलिया को तोड़ के ये सारे मलबा यहाँ पे रखा हुआ है और इसमें सारा पानी भरी जा रहा है। इसके करते मच्छर यहाँ पे पैदा हो गए। जब अच्छे वाली पुलिया थी तो क्या तोड़ने की ज़रूरत थी? अगर तोड़ भी दिए तो विकास के बदले इन्होंने विनाश का काम कर रहा है। तोड़ भी दिए तो सारा मलबा साफ़ हो जाना चाहिए ताकि पानी आराम से निकल जाए और इसका घेराबंदी कोई 3 टप्पर लगा के ताकि कोई जानवर ना गिर जाए, कोई बच्चा ना गिरे, कोई इसमें गाड़ी इतने स्पीड आ रही है कोई गाड़ी ना गिर जाए। 3 मंदिर है, शीतला माता मंदिर है, यहाँ पे शनि भगवान का मंदिर है, गुगापाड़ी मंदिर है। इन 3 मंदिरों का बीच में इन्होंने इतना बड़ा काम किया है। ये सारा काम गलत किया जी, अच्छे का बदला गलत कर। अजीब दास्तान। नींव पत्थर रखने का ऐसा शौक कि नींव पत्थर रखने के बाद ये भी मालूम नहीं कि जो एक तरह से नींव पत्थर रखने के बाद उस नींव पत्थर का हशर क्या हुआ है। नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास के दावे करती है। चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सांसद किरण खेर जी हैं। चंडीगढ़ में नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है। आज आपको मनी माजरा में एक नींव पत्थर दिखा रहे हैं। आइए जी, देखिए, ये नींव पत्थर है। कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज एट टी पॉइंट नियर शनि मंदिर, मनी माजरा, बाय श्रीमती सर्वजीत कौर, मेयर चंडीगढ़। In the August presence of Srimati Anandita Mitra IAS on dated 7th January 2023। आज आप देख सकते हैं कि गंदगी का आलम, इसके साथ ही साथ आप इस नींव पत्थर का अंजाम भी देख सकते हैं। नींव पत्थर रखने को टाइम गुजर गया है। 7 जनवरी से आज तक 3 महीने के आसपास गुजर गए, लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। इसी विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं चंडीगढ़ नगर निगम के पूर्व महापौर सरदार सुरिंदर सिंह जी से। सत श्री अकाल जी, आप चंडीगढ़ नगर निगम के महापौर रह चुके हैं। ये जो 3 महीने गुजर गए और अभी तक काम नहीं हुआ नींव पत्थर रखने को, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਚੌਂਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ਨੀ ਮੰਦਰ, ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਦਰ ਤੇ ਗੁੱਗਾ ਮਾੜੀ, 3 ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੌਲੀ ਜਿਕਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਮਾਜਰੇ ਨੂੰ ਰੋਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਪੁਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਕਰੀਟ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪੱਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੰਦਗੀ ਢੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੇਅਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੋਡ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਪੁਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫੈਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਰੋਡ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾਮ ਨਾ ਲੱਗੇ। 7 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੁਲੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪੁਲੀ ਤੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਨਾਲੇ ਦੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪਨ ਪੁਲੀ ਹੈ। ਜਾਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਪੁਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
कि वो प्रोजेक्ट मंजूर हो चुके हैं, ਉਹਦੇ फंड्स मंजूर हो चुके हैं, ਉਹਦਾ एस्टीमेट बन के टेंडर किसी ठेकेदार ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ और नींह पत्थर ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ नींह पत्थर ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਜੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਪੁਲੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਿੰਡੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਔਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਬਦਬੂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼ਨੀ ਮੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਗਾ ਮਾੜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਸੁੰਘਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਊ ਜਵਾਕ ਦਿਖਾਏ ਸੀ, ਮਨੀ ਮਾਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਫਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਸੜਕਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਧੀਆ ਚਮਚਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਗਲੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਆ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਗਰ ਤੱਕ, ਓਲਡ ਰੋਪੜ ਰੋਡ, ਮਨੀ ਮਾਰੇ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਗਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਖੱਡੇ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਗਲੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਸਫਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਪਾਣੀ 24 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੌਥੇ ਫੇਜ਼ ਦਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਮੇਅਰ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਨੀ ਮਾਰੇ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ, ਲੜਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੀ ਮਾਰੇ ਤੱਕ ਲੈਂਪ ਪਾ ਕੇ ਮਾਡਰਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ अजय गर्मी शुरू नहीं हुई, उन्हें घाट आनी शुरू हो गई। समस्याओं का अंबार है, लेकिन बात सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, सामाजिक है। यहाँ हमारे साथ गोविंदपुरा टाउन के एक दुकानदार और साथ ही जो ना अकाली दल के लीडर जिन्होंने पहले जो ना एक तरह से बीजेपी को वोट भी दिया है, मेरे साथ बैठे खड़े हैं सरदार अवतार सिंह जी। अवतार सिंह जी, जो गंदगी का आलम है, ये इसके बारे में क्या नज़र नहीं आता ही किसी को? मनी मारे में गंदगी का बहुत बुरा हाल है। कोई काउंसलर, कोई यहाँ अफसर इसकी सुध नहीं लेता। उनकी जिम्मेवार तो बारी बनती है अफसर की कि आके देखे, जिन्हें ड्यूटियाँ भी लगी हैं, उन्होंने ड्यूटियाँ चैक करने की गंदगी साफ क्यों नहीं करते। जिथे लगे ढेर लगे हैं, गलियां च मोड़ा च देख लो, बहुत बुरा हाल है। साढ़े मेन चौराहा इतने गुरुद्वारा जाते हैं, उत्ते जहाँ मर्जी देख सकते हैं गंदगी की ढेर लगी। जो अवतार सिंह जी ने कहा है कि महज ये टी पॉइंट नहीं जहाँ जो एक तरह से ये नींव पत्थर रखा है कि वहीं गंदगी है, गंदगी जो एक तरह से पूरे मनी मदरा में बहुत फैली हुई है। हमारे साथ एक दुकानदार मता जी, अपना शुभ नाम मता जी, मतलूब खान जी। तो मतलूब जी, आप शहर के जिम्मेदार शहरी हैं, तो आप ये गंदगी के बारे में कुछ कहेंगे जी? सैनिटरी डिपार्टमेंट है जो मनी माजरे का, वो सिर्फ सुबह 6 बजे से लेके शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक ये देखता है कि कूड़ा फेंकने कौन आया है, उसका चलान करने तक ही सीमित है। वो कूड़ा उठाने की जहमत तो कोई नहीं उठाता। वाकई ही मतलब शहर का बहुत बुरा हाल है। तो सरदार सुरेंद्र सिंह जब यहाँ पर 2006 में मेयर थे, तो इनोग्रेशन पत्थर उस टाइम भी यहाँ पर रखा गया था, पुली बनी थी उस टाइम। उसके बाद में 2 पत्थर और भी रखे गए हैं, कोई डेवलपमेंट का नाम नहीं है। देखिए, किसी पार्टी विशेष का सिस्टम नहीं है। शहरवासी होने के नाते मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि जो गंदगी के ढेर हैं और जिस चीज़ के लिए इनोग्रेशन किया गया है, ये रखा गया है, उस काम को जल्द से जल्द शुरू करें जिससे शहरवासी इसका लाभ उठा सकें। जो मतलूब खान जी ने कहा है कि शहर वासियों की सुख सुविधा का ख्याल रखा जाना चाहिए। यहाँ एक इत्तेफाक है कि ये कोई टी पॉइंट है, यहाँ 3 धार्मिक स्थान बिल्कुल नज़दीक है। उन्हीं में से एक के जो ना प्रेसिडेंट श्री राजिंदर रांझा जी मेरे साथ है,
रविंदर जी, ये गंदगी और ये परेशानी, इसके साथ ही साथ नाले में किसी बच्चे के गिरने का, किसी जानवर के गिरने का अभी चर्चा आया, आप कुछ कहेंगे जी? जी, अभी कुछ दिन पहले 2 जानवर इसके अंदर गिर गए हैं, जो कि बड़ी मुश्किल से निकाले हैं। और बीच में अभी बारिश आई थी, उसकी वजह से इतनी गंदगी है यहाँ पे, कोई सफाई नहीं करने आता है, ना सफाई की तरफ इधर ध्यान दिया जाता है। 3 के तीनों ही मंदिर की तरफ इतना गंदगी है कि आने जाने वालों को परेशान है। और इसमें बीमारी फैलने का ज़्यादा, मलेरिया वगैरह होने का, बरसाती पानी खड़ा है जो कि ढेरियाँ लगी हुई हैं कूड़े की, यहाँ पे कोई भी सफाई करने के लिए नहीं आता है, ना की जाती है। सो यहाँ पे इतनी ज़्यादा गंदगी है कि हर पब्लिक को, हर समाज में, हर किसी को परेशानी आ रही है कि यहाँ से कोई भी सफाई नहीं की जाती है। सो ऐसे ही गंदगी है, हम प्रशासन से यही कहेंगे कि ये सारी सफाई का ध्यान रखा जाए और यहाँ हमारे मंदिरों के पास सफाई कराई जाए। हमारे साथ चंडीगढ़ के एक वरिष्ठ नेता, चंडीगढ़ समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट डॉक्टर विक्रम यादव जी भी हैं। डॉक्टर विक्रम यादव जी से भी इसी सिलसिले में बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि ऐसा कोई काम देखा है कि जिसका उद्घाटन हो गया हो, कई महीने गुजर गए हों और काम शुरू भी ना हुआ हो? देखिए, ये तो बीजेपी का हमेशा जुमला रहा है। 7 जनवरी का जो टाइम रखा गया है, और हमारे भूतपूर्व मेयर भी यहाँ पर बैठे हैं साथ में, उनको मालूम है कि जब बजट पास हो जाता है, ठेकेदार को उसको टेंडर दे दिया जाता है, सारे चीज़ कंप्लीट होने के बाद नींव पत्थर रखी जाती है। तो इतनी जल्दबाजी किस बात की इन लोगों की रहती है? जहाँ देखिए हर गलियों में जाके 2 पत्थर लगा देते हैं, काम होता नहीं है। जब कहा सब पूरे शहर में ऐसे सत्यानाश फेर के रख दिया बीजेपी वालों, सबसे ज़्यादा उद्घाटन करते हैं, पत्थर सस्ता मिलता है, नाम लिख लेते हैं, ला के 2 पत्थर लगा के चिपका के, वो कि सिर्फ इतना है कि उद्घाटन करके मीडिया में दे देना कि हमने उद्घाटन कर दिया। अरे वो उद्घाटन आपने कर दिया तो उसका काम कौन करेगा? आप ही करेंगे ना। इतना बड़ा जो पुलिया पहले से बना हुआ था, आपने उसको तोड़ दिया। इतनी जल्दी क्या थी कि आपने आफत आ रही थी क्या आपके लिए? ऐसा क्या? जो यहाँ की मेयर थी उस समय, जिन्होंने उद्घाटन किया यहाँ पर, क्या उनके सर पर पुल बोझ बना हुआ था? क्या था? क्यों तोड़ा गया? जब अच्छा खासा पुल था उसको तोड़ा ही क्यों गया? और तोड़ा गया तो बगैर टेंडर का कैसे आपने नींव पत्थर लगा दिया? या तो टेंडर हुआ नहीं, या आप जल्दबाजी में आपने नींव पत्थर रख दिया। क्यों रखा? चुनाव भी नहीं है आपको कि चुनाव में आपने जाना, चलो इससे पहले इसको लगा दिया जाए। तो मैं कह रहा पूरे शहर का बीजेपी ने सत्यानाश फेर के रख दिया सर में। सिर्फ इन्होंने उद्घाटन करना है, काम कोई नहीं करना। रह गई मन्नी माजरे की बात, आप लाइए, इतने 3 मंदिर हैं यहाँ पर आसपास में, और मौके का ही मन्नी माजर का मेन एंट्री माना जाता है ये जगह। गंदगी आपके सामने है, पुलिया से स्मेल इतनी आ रही है। कल परसों 2 जानवर यहाँ पर गिर गए हैं, 2 दिन के पहले बारिश हुई है, स्मेल इतना मार रहा है, यहाँ पर रहा नहीं जा रहा है। तो जो आम पब्लिक है उसका क्या हाल होगा? गर्मी के सीज़न शुरू हो गया है, जिसे बोलता है मलेरिया आ जाएगी, फलाने बीमारियाँ इतनी बढ़ेगी, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? प्रशासन इसका जिम्मेवारी लेगा? बीजेपी के लोग लेंगे? कौन लेगा इसकी जिम्मेवारी? आखिर जब चुन के जनता ने आपको भेजा है तो सुविधा देना आपका काम है, तो ये लोग क्यों नहीं दे रहे? सिर्फ उद्घाटन करने से काम नहीं चलेगा और जुमलाबाजी से काम नहीं चलेगा। आप अगर काम नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में यही जनता मन्नी माजरे की आपको मजा चखा देगी। जिस सदन में आपको चुन के भेजा है उसी सदन का बाहर का रास्ता भी दिखाने के मन्नी माजरा के लोग और चंडीगढ़ के लोग जानते हैं। महज दिखावा नहीं होना चाहिए, हकीकत में जो है काम होना चाहिए। उद्घाटन किया और उसके बाद छोड़ दिया, चाहे गंदगी हो चाहे लोगों को परेशानी हो, ऐसा ठीक नहीं है। अगर आप मेरे साथ सहमत हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जनता की परेशानी का हल हो। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी गुजारिश करूँगा कि अगर आप चाहें कि जागरूकता एक निष्पक्ष पत्रकार के तौर पर अपनी भूमिका निभाता रहे, हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते रहें और सबकी आवाज़ बने, तो उसके लिए आपसे निवेदन है कि इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए ताकि हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सबके स्वास्थ्य की कामना के साथ साथ, चंडीगढ़ के विकास की कामना के साथ साथ आप सबको नमस्कार।